आप लोग दोनों बहुत एक दूसरे का तारीफ करते हो. Are you guys just co-founders or are you guys a thing also? The thing is that Diavol is not a fashion brand. Yes. Diavol is Designer. no. Diavol is actually a डे वन पे मुंबई आया तब तो कुछ ही नहीं, पूरा ब्लैंक था. हम बैंड्रा में आए, हमारा एक फ्रेंड था, तो वहाँ उतरे और but the clothing angle is a cover up cover up. where everybody thinks that not really. I would want to become a snitch. A snitch. Snitch also came on Shark Tank जो 100 crore का डील लेकर गया था. The first brand who took a 100 crore deal. ये सीजन का और नहीं फर्स्ट सीजन का था ना. All 5 sharks बराबर. invested in Snitch, a fast fashion brand. Okay. So Snitch is the fastest. Somewhat एक like और that. Freakins is also very good, but pricing difference काफी ज़्यादा है. Like Snitch is affordable for whole of India. हाँ. Correct? Exactly what we are also trying to build. We don't want to keep ourselves very exclusive to a certain niche category in India. We want to be available to everyone, and that is what our pricing also offers. We are not going in the premium category. का Zudio. Yeah, D2C का Zudio. But again, I don't want to say bad things about any brand, but Zudio तो इतना ही मतलब वो quality में because of the pricing, because of the pricing they offer, and there is a market for that also. But वो quality में और जो हम फास्ट फैशन में जो क्वालिटी देते हैं उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी डिफरेंस है. आज Studio का मतलब कपड़ा is that you wear it for like a couple of time and then you throw it. हाँ हाँ. it is actually meant to be only for a couple of time wear वैसा. मैं आपको सच बताऊँ, Zudio का सेलिंग प्राइस तो बहुत सारे ब्रांड्स का बाइंग प्राइस है. हाँ. तो आप समझ रहे हो. ये तो सच है. So I don't know much about this, but then Yash is very keen on this fashion wala brand. So his father owns a garment shop, and before we started Rocka, or before we started this chocolate industry, we went into this industry. He wanted to come into this fashion and t-shirt and I would say the fabrication Correct. industry. It is a very interesting So I space but researched very about it. competitive. अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है सब कुछ. तो काफ़ी ब्रांड नेम्स, hundreds of brand names, hundreds of vendors, designs, सब कुछ हमने रेडी किया था. इसने भी काफ़ी हेल्प की थी. और मेरे बड़े भैया सिट्स इन शॉप एंड ऑल, तो उनसे भी कुछ ग्राउंड लेवल नॉलेज. लेकिन फिर नहीं वर्कआउट हुआ वो चीज़. ठीक है. या कई कुछ चीज़ नहीं वर्कआउट हुआ तब जाके ही प्रोबेबली रोका इतना अच्छे से वर्कआउट हो रहा है. Right. But yeah, fashion is a very interesting space. It is. But because now every second person wants to get into the fashion space, so it is very competitive also. Like आप जो कर रहे हो वो कोई और भी कर रहा है, और वो 10 और लोग वो देख के वो लोग भी वही चीज़ कर रहे हैं. तो अब वो 10 में से एक जन को स्टैंड आउट करना है, कैसे हो पाएगा? Like it is very difficult. ब्रांडिंग करने वाले 10 तो ऑलरेडी है, Yes. लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड तो हज़ारों. हाँ, exactly. तो और लंबा competition. Exactly. And branding मतलब just using 1-2 big faces, and that is not branding. Branding has to be a long-term journey. Yes. Where everything is getting connected to Yes. the other. Unless and until आपके डैड शाहरुख खान हो, हाँ. जैसे आर्यन ने चला किया. See, with Diavol, the thing is that Diavol is not a fashion brand. Yes. Diavol is Designer. no. Diavol is actually a liquor brand. They make vodka. But because Shah Rukh Khan's son Aryan Khan, and there is a taboo behind Muslims working with alcohol, correct? After the whole drug case, Aryan Khan cannot come out and directly start a liquor brand, because that will get more negative branding for him and his father, correct? So that is why he launched Diavol as a liquor brand, but the clothing angle is a cover up. Where everybody thinks that Diavol is actually a streetwear luxury brand, but Diavol is actually a liquor brand that provides vodka, that makes vodka, and it serves in parties, concerts, wherever. Merchandise है. Exactly. That is a cover up, that is a hiding from the whole vodka angle. I remember the day we came to Bombay. So we belong to a tier 3 city, Nagpur, and exposure, experience, ecosystem, entrepreneurship, D2C, all of this is so rare to find. And hardly any incubator you will find. And on the name of incubation, you get all the government schemes. You have to work on that, make PPT, this and that. And government don't really promote brands like chocolates. They do more over the sustainable brands. So I remember, Agri-tech. so all of that. So Tech me mostly. Yes. but when we came to Bombay, we were blank. I mean, our investors, it was our first investment. Our factory was shut. Like, I mean, it wasn't fire or anything. It was capital ka problem, where because of which the factory was shut. And we knew that back then कि if ये factory का ताला खोलना है, we need money. So for that, we've already put a lot from our pocket. I mean, he has put a lot from his pocket.
I couldn't invest much, but then we took a bank loan on women entrepreneur wala cheese, and then that was going on, and all the interest, and then I mean CC का amount अलग जा रहा है, term का amount अलग जा रहा है. Between all of this, when we came to Bombay, D2C was such a new sector for us that, you know, getting into the shoes of that, I mean, to know, okay, now we don't have to manufacture. We are not the one working in a factory. We are someone who's sitting हमारे comfort zone में we working, and that was when we were blank so as to what to do, how to start. I mean, we were getting like 1 lakh rupees. We used to make a call, we used to get 1 lakh, 2 lakh ka order, and we used to make it, we used to deliver it. But then now we are like getting 500 ka order and 400 ka order, and jitna I would say हमारा जो मेहनत था would go behind that 2 lakh rupees ka order was going behind that 500 rupees ka order. So it was such a big shift for us. But then I believe it's been 1.5 year period, but it's going But well. you all also basically started with B2B only. Yeah, Okay. we started with B2B. So then what was the thinking? Why did you all think कि या मेरे को B2B नहीं या मेरे को B2C करना है? सबसे पहले तो एक्सपोजर ही नहीं था, तो पता ही नहीं ना कि Correct. D2C में कैसे कैसे ब्रांड्स बन रहे हैं आजकल. Correct. इंटरनेट तो है हमारे पास, लेकिन इंटरनेट को हमको लगता था यार इन्होंने तो B2B में स्केल कर लिया, अब जाके ये ऑनलाइन इतना अच्छा बिक रहा है. Right. लेकिन ऑल टुगेदर रियलिटी ऐसी थी कि उन्होंने ऑनलाइन से ही स्टार्ट किया Correct. और बाद में उनको B2B की बहुत अच्छी इंक्वायरीज आई है स्टोर्स में और डिस्ट्रीब्यूटर्स में. Correct. But Eventually, there are two ways that you go. Either you pick something or something is thrown to you. So this complete shift to D2C was thrown to us from our investors. So 100x VC invested in us, and it was our first investment. We were scared. Is it going to happen? They said, we are going to invest in Roca only on one condition, that shifts. you shift the whole business to D2C. And we were like, ठीक है पैसा दे दो, we'll do it. That was our reaction, and we did it. But so yeah, that it was a condition that was thrown to us, and we. But it was a life-changing condition. It was. I would say. It Not was. wrong, It was. it was correct. Because someone had told me also this thing that if you want to focus in your D2C business, then you'll have to shut down your B2B business. एक चीज़ तो आपको बंद करनी ही पड़ेगी फॉर द टाइम बीइंग, जब तक एक पूरा सेटल नहीं हो जाता. एक आपका स्टेबल हो जाए, फिर आप वापस दूसरे में फोकस कर सकते हो. तो there's no harm in या that. ऑफ कोर्स आप अगर आप नहीं भाग सकते. लेकिन हम हमारा फोकस डाइवर्ट नहीं कर सकते फ्रॉम सही. D2C, Correct. क्योंकि D2C बहुत चीजें मांगता है. आपका मतलब अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए हर प्लेटफॉर्म पे. वो बोलेगा वेबसाइट पे आपको ये एड्स करनी है, अब वो एड्स हर हफ्ते में कुछ ना कुछ नया आना चाहिए, या ये हफ्ते में उसका ये रिजल्ट क्यों नहीं आया, उसका कौन से टारगेट को दिखा, ये टारगेट वर्क नहीं किया, चलो इसको काटो, अब नेक्स्ट टारगेट पे ए बी टेस्टिंग करो, फिर नेक्स्ट टारगेट पे ए बी टेस्टिंग करो. और हम 6 महीने का डेटा कलेक्ट करके, पिरामिड होता है ना, तो हमारा पहले इतना बड़ा फनल था, फिर वो करते करते हमको एक प्रॉपर ऑडियंस मिलेगा. अच्छा, जैसे मैं रॉका का बताऊँ तो फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवलर्स, लग्जरी फूड बायर्स, उसके अलावा गोरमे फूड बायर्स, उसके अलावा ज्वेलरी बायर्स, वो हमारा नीश हमको मिला. लेकिन काफ़ी समय लगा Why jewelry buyers? क्योंकि स्पेंड अच्छा होता है. तो दोज हु सर्च मोर ऑन ज्वेलरी एंड ऑल, उन्होंने हमारा प्रोडक्ट भी लिया है. ठीक है, ज्वेलरी तो करोड़ों लाखों की लेते ही है, तो क्यों 500,000 का प्रोडक्ट तो ले सकते हैं. Interesting. Yes. सो ये हमको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिला और काफ़ी इंसाइट्स मिले. मैं आगे बताऊंगा मतलब हमको कौन सा ऑडियंस कैसे कैटर करना है, उसके बाद क्या पर्टिकुलर एड्स हमारे लिए वर्क कर रही है. शुरुआत में तो नहीं समझ में आ रहा था, नहीं, सही बात तो है. बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि हमने तो यूजीसी बना के कर दिया, क्यों सेल नहीं आ रहा है. मैं तो 10,000 रुपये डाल दिया, 10,000 का 4,000 ही सेल आया, 6,000 जेब से गया, 4,000 को भेजने में 2,000 रुपये का प्रोडक्ट लग गया, 1,500 की शिपिंग लग गई. सही बात. उसके अलावा ऑफिस का खर्चा, मेरी तेरी सैलरी, सबका वो तो अलग है. वो तो अलग ही है. सही बात है. सही बात तो मैं कैसे करूँ. तो ये डे 1 पे मुंबई आया तब तो कुछ ही नहीं, पूरा ब्लैंक था. हम बैंड्रा में आए, हमारा एक फ्रेंड था, तो वहाँ उतरे और वहाँ उतरते से बस भाग रहे लोग यहाँ से वहाँ, क्या करें, कहाँ जाए. तो हम वो फ्रेंड के घर गए और वहाँ पर भी रात के 3 बजे तक बैंड्रा तो सोता ही नहीं है, मतलब कंटिन्यूसली वहाँ पार्टीज चलती रहती है. वो लिंकिन रोड पे उनका घर था, वहाँ हम कैश इन कर रहे थे, मतलब बैठे हुए थे बस, और वहाँ देख रहे 3 बजे तक लोग पार्टी किए जा रहे हैं, और हमारे पास कुछ रहने की जगह है, ना हमारे पास प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा वो है, प्रोडक्ट को रीब्रांड करना है वो कैसे करें वो है. हमारे हाथ में बस टर्म शीट थी और डील भी क्लोज होने की है उस टाइम. तो नागपुर का जस्ट हमने वाइंड अप करके आए हैं, उस वहाँ पर भी कुछ माइनर चीज़ें बाकी थी, तो फिर हमने यहाँ शुरू किया. और इवेंचुअली बहुत ज़्यादा हमको समझ में आया कि ये चीज़ हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे. वी स्टेड इन हॉस्टल, क्या बोलते हैं, डॉर्मेट्री. डॉर्मेट्री में हम रुके थे, बैंड्रा में ही है, काफ़ी डिसेंट है. तो वो मोस्टली बोलते हैं यूनिसेक्स डॉर्मेट्री है, लेकिन वहाँ मोस्टली लड़के ही रहते हैं. तो सोनल भी वहाँ रुकी थी, तो थोड़ा ऑड था वो बंक बेड्स वगैरह होते हैं. तो
हम रुके वहाँ 10-15 दिन, और हमने हमारा बैंक अकाउंट, हमारा GST, हमारा ऑफिस स्पेस कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। फिर वहाँ से इन्वेस्टर बोले कि तुम सेल करना तो चालू करो, तुम्हारे पास जो पड़ा हुआ स्टॉक होगा नागपुर का। तो वो स्टॉक हमने फिर थोड़ा बहुत लाया पुराने बॉक्सेस में। वी स्टार्टेड बेसिक वेबसाइट शॉपिफाई बिल्ड, बहुत ही बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक। उस पर एड स्पेंड करना चालू किया, तो ऐसी वेबसाइट देख के कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन हमने बोला ठीक It है। was blank, Yeah, white. the जिसके first ऊपर time you do, you बस cannot product expect का- that it will be there. But वो जो second time, third time you हाँ, make the changes, वो हो जाएगा better with time. हमारे साथ भी वैसा ही हुआ, like the first time our website was like, bro, मेरे को भी मतलब वो vibe नहीं आ रही थी कि यार मेरे को इस brand से कुछ खरीदना है. But अब अगर आप लोग को third and fourth change के बाद मेरे को लग रहा था wow, what a classy website. हाँ, फिर भी वो क्लासी नहीं होता। हाँ, of course, it is a Changes never are ending never process. It ending. is a never ending process. Like Apple आज भी अपना website को change करता Change रहता है. Why? Because they think that it is not there yet. Every time they will keep changing to, yeah, of course, that is लेकिन a हर never स्टेज पे ending बुरा process. बहुत लगता है। Of फिर course. लेकिन ओवर द पीरियड हमको समझ में आता है कि नहीं, ये एक जर्नी, हमको ये चीज़ को एवरेज करना पड़ेगा कि हाँ, हमारा प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है, हमारा वेबसाइट परफेक्ट नहीं है, हमारा सेल्स ऑल द टाइम परफेक्ट नहीं है, हमें हमेशा चेंज करते रहना पड़ेगा। यू विल बी नियर परफेक्ट बट यू विल नेवर बी परफेक्ट। Correct. जब आपने सोच लिया मैं परफेक्ट हूँ तो नहीं चलेगा। And that time, so the trends also change. Yes, Exactly. yes. The best part is the trends are changing so quickly right now that if you make your mind on one thing, कि yeah, this I've achieved perfectly, now I'm satisfied. You cannot be नहीं हो satisfied. सकता। तो 2 दिन के बाद वो trend change हो जाएगा, अब आपको Exactly. वापस एक नया strategy Exactly. figure out करना है how to tap into this trend now. So like you have to keep doing You can be changes. prepared for every other things, but external factor के लिए आप prepare कर ही नहीं कर सकते। ही नहीं सकते. आप सब कुछ कर दिया, चलो मेरे पास इतना सब कुछ रेडी है, बढ़िया प्रोडक्ट की इन्वेंट्री बना ली, सब बना ली, अब आ गया तूफान, कोविड आ गया, जैसे क्या कर लोगे, खत्म बात। सही बात. आपका स्टोर में बिक रहा था उस समय, जैसे हमारे साथ हुआ, जा रहा है नागपुर के कुछ 10-12 स्टोर में जा रहा है, रायपुर में कुछ जा रहा है, दिल्ली में कुछ स्टोर्स में जा रहा है, और उसके अलावा बैंगलोर कुछ स्टोर में जा रहा है। अब रातों रात सारे स्टोर्स ही बंद हो गए, हम तो बैठ गए वहीं पे, बैठ क्या करें अभी, D2C में तो हमारा कोई प्रेजेंस है ही नहीं, और इतना अमेजिंग प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी इतना अमेजिंग हमने नहीं बिल्ड किया था कि लोग सामने से डिमांड करें। उस समय एसेंशियल्स की ज़्यादा डिमांड थी, एसेंशियल के साथ लग्जरी गुड्स वो बिक रहे थे जो ऑलरेडी सालों से मार्केट में है और जिन्होंने ऐसा कन्विक्शन बिल्ड किया, जैसे लिंट हो गया, जैसे कैडबरी हो गया, ये सब का है कन्विक्शन सही बिल्ड, बात. लोग आंख बंद करके ले लेंगे। लेकिन हमारा ब्रांड तो 6 महीने साल भर पुराना भी नहीं है, तो वहीं पे हम जीरो हो गए। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर सबसे बड़ी चीज़ है जो हमने रिकॉग्नाइज की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि ये बाहर से जो भी ऐसे चीज़ें आ जाती है, ट्रेंड जैसे आपने बोला, सबसे बड़ा आपके इसमें वही है कि ट्रेंड चेंज हो गया, वो आपका स्टॉक भी क्या करेंगे, उसको आप डिस्काउंटेड प्राइस में निकालो, वहाँ तो आपका पैसा बर्न हो गया। सही बात है. वेबसाइट फिर सारे नया फोटोशूट, नया स्टॉक लाओ, वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लग गया, तो ये इन्वेंट्री आपको कुछ ना कुछ तो डिप्लीट करनी पड़ेगी। एंड मोर, चलो ये तो अपने ब्रांड टू ब्रांड एंड जैसा टाइप का आपका ब्रांड है उसके नीश में हो गए, हमारे में प्रोडक्ट्स हो जाता है, आप लोग में मे बी फ्लेवर्स हो जाता होगा एंड समथिंग लाइक दैट, करेक्ट. बट हर ब्रांड को मार्केटिंग ट्रेंड्स तो एक ही फॉलो करनी है. Right. हाँ, वो चेंज होती रहती है. वो तो सभी ब्रांड्स को एक ही फॉलो करना है कि आज इंस्टाग्राम पे कैसे टाइप का एल्गोरिदम्स वर्क कर रहा है, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए. अगर आप वो नॉलेज, अगर आप वो ही एल्गोरिदम्स को फॉलो नहीं करोगे, देन यू वोंट गेट द रीच व्हाट द एल्गोरिदम इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग. सो लाइक मार्केटिंग ट्रेंड्स चेंज very 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 quick, and those trends all types of businesses have to follow, even if it is a real estate business, even if it is a medical business, or it is a FMCG business. Like, you know, people have to follow marketing trends. That is something like very important. मेटा का एक प्रॉब्लम आया था लास्ट टाइम, दिसंबर जैन में ही आया था कि सबके एड अकाउंट्स में कन्वर्जन बहुत कम हो रहे थे, तो वो समझ में आया बाद में कि मेटा अपने एडवांटेज प्लस कैंपेन को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। Yes. अब एडवांटेज प्लस कैंपेन में आप अपना ऑडियंस सेलेक्ट नहीं कर सकते, मेटा खुद रिकॉग्नाइज करेगा कि कहाँ दिखाना है। अब वो एकदम से सडन शिफ्ट आया, अब लोगों ने वहाँ पैसा ज़्यादा लगा दिया, लोगों का पैसा बर्न हो गया। अभी एडवांटेज प्लस थोड़ा लर्न कर चुका है। Yes. तो जैसे आपने बोला कि हाँ ये चीज़ कभी भी, क्योंकि दे हैव द पावर, अब वो लोग कैसे भी चेंज कर सकते हैं, दे हैव टू मेक द मनी। Correct. तो- But one more thing is that the new age brands, they actually think कि भाई performance marketing से brand बन जाएगी, और उनको लगता है कि बस आज हमने अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है और आज मैंने एड्स चालू कर दिया ना, तो एड्स की वजह से मेरे को तो ऐसा सेल्स आने लग जाएगा. लाइक दैट इज एक्चुअली व्हाट पीपल थिंक. पीपल कम अप टू मी एंड ऑल्सो आस्क, ब्रो आई एम सीइंग सो मेनी एड्स, कैसा चल रहा है तेरा? लाइक ब्रो, एड्स दिख रहा है बिकॉज दैट इज अ प्रोसेस ऑफ माई ब्रांड बिल्डिंग. तुम लोग को आज दिख रहा है, आज से 6 महीने बाद भी दिखेगा, आज से 1 साल बाद भी दिखेगा, तब जाके वो दिमाग में एक ब्रांड बैठ जाएगा. प्लस वो एड्स में भी इफ आई एम फॉलोइंग द ट्रेंड्स दैट मेटा विल सपोर्ट, ओनली देन विल आई गेट दैट कन्वर्जन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि बस एड्स चालू कर दिया आपको सेल्स आ रहा है, दैट डजंट हैपन. That is one of the biggest myth in a D2C brand
कि आप आज एक वेबसाइट बना दो, कल आपने मेटा एड्स चला दी, बस एक कोई ब्यूटीफुल फेस ले लो, यूजीसी बना दो, व्हाटएवर, यू इट जस्ट इज शूट नॉट दैट कंटेंट इजी, इट इज एंड यू नॉट इजी. स्पेंड. वो मेटा एड्स को ट्रेन करने में कितने महीने लग जाते हैं. एग्जैक्टली कितने महीने तक यू हैव टू कंसिस्टेंटली पुट मनी एंड यू हैव टू सी कि नहीं आ रहा है रिटर्न्स, बट देन ऑल्सो यू हैव टू स्टिल बिलीव इन योर सेल्फ कि आएगा. 6 महीना उसको ट्रेन होने दो, 7वें महीने में शायद थोड़ा बेटर होएगा, लाइक होएगा. बट पहले आप 1 महीने से आप एक्सपेक्ट करते हो नहीं हो रहा है, सेकंड महीने आप देखते हो और भी नहीं हो रहा है, थर्ड महीने आप चेंज कर देते हो. तो आपने तो वेस्ट कर दिया जो आपने पहले 2-3 महीने खर्चा भी किया था, टाइम भी किया था. So when we came to Bombay, we had our mentor, who's still our mentor, and that time we were just getting started. No packaging was on place, no product was on place, but we still wanted to sell. So we hired a marketing agency. He was doing something, we were not liking it, or as you said, कि वो result नहीं आ रहा था. It was 10 days. We were running the ads. There was no sales. We couldn't understand कि अच्छा same marketing agency जो एक और दूसरे brand के लिए कर रहा है, he is doing the same things for us. I mean the similar things. Obviously वो दोनों sector अलग है. उनका cosmetic है और हमारा food है. But it was working for them. They were getting like 3 crores and we were getting what 0.9, 1 भी नहीं. So it was a long road where we realized that every brand, every category, it is different. I mean, what content worked for us may not work for you. Yes, yes. So definitely. उनके लिए जो उनका content work किया था was I would say simple graphics ज़्यादा work किए थे और some review videos where we put the UGCs, the normal I would say iPhone से या एक basic camera से shoot किया हुआ where the girl is giving a review or a guy is giving a review would not work more, but जैसे But वो raw touch दे देता है. raw touch था, but it wasn't going with the brand. Correct. I mean we have some premium chocolates. Correct. So your तो- placement should also Yeah, so not be raw. उसके लिए फिर we rebranded, फिर we started हमारा जो कंटेंट था कि थोड़ा अच्छे से प्रोफेशनल शूट किया, प्रोफेशनल लाइट्स, वो एंगल्स, और फिर no voice as such, just the background music, some aesthetic shots, some good, I mean some nice angle का video that worked for us. Correct. तो मतलब यूजीसी में कैसे एक गर्ल इज अनबॉक्सिंग अ प्रोडक्ट और वो रिव्यू कर रही है, या तो एक कुछ हुक बनाया हमने, एक मॉम बोल रही है कि मुझे थोड़ा प्रोटीन रिच चाहिए, इसमें नट्स है, मेरा बेटा नट्स नहीं खाता. उससे ज़्यादा हमारा वर्क किया एक प्लेन 15-20 सेकंड का वीडियो जिसमें बस प्रोडक्ट के क्लोजअप शॉट्स है और एक लड़की बस अच्छे से उसको खा रही है एंड शी इज़ फीलिंग, और लोकेशन भी बहुत प्यारा है, और वो ऐड ने अच्छा वर्क किया. नो डायलॉग्स, सिर्फ एक अच्छा प्यारा सा म्यूजिक. अब बताओ यही चीज अब कोई नया एक चॉकलेट ब्रांड आके ट्राई करे, मे बी इट वोंट वर्क फॉर देम. इट मोस्टली इट वोंट वर्क फॉर देम, क्योंकि टाइमिंग भी एक चीज होती है, आपका ऑडियंस आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी एक चीज होती है. वो सारी चीजें एक टाइम पे एकदम सही टाइम पे सही तरीके से ग्रीन टिक भी मिल गया, वो भी एक चीज होता है कि यू आर एट द राइट टाइम एट द at right place. आपने वो चीज पोस्ट किया at the right time when the right audience was viewing it. Yes. There are so many other factors Yes. also. Yes. Like, It's a learning process. It is a learning process, and more than anything, I feel if one stays consistent, they will figure out things for themselves. कि oh, this is not working, maybe this will work. You have to try different things, but you cannot copy. You cannot copy. That I agree. I would say, unlike a fashion or a cosmetic brand, we are more of an indulgence factor plus an impulse buy. So, to us, मतलब ordering from our website, waiting for 3 to 4 days or 5 days at max to get the box of chocolate. I mean, it makes no sense. We have to be more quick. I mean, we either have to be available near you, or maybe the quick commerce or Amazon पे Prime का या फिर FBA के through 1-day delivery is what we can do. But then for a t-shirt I can wait, for cosmetic I can wait, but for chocolate I cannot wait. Cannot wait. So- Instant gratification. So it has, I mean that was the reason we were getting like a little RTOs, RTVs, but that is how we figured out. बट टचवुड हमारा आरटीओ बहुत कम है हाँ. कंपैरेटिवली. But because चॉकलेट देखने के बाद किसी को मन ही नहीं करता वो वापस बेचने का. मुझे लगता है भाई खा ही लेते हैं अपने. ये बहुत लोगों ने बोला था कि आरटीओ 10% एक्सपेक्ट करना चाहिए. मोस्टली तो 15-17%, जैसे वो कॉस्मेटिक के ब्रांड थे और काफ़ी और ब्रांड्स थे जो हमारे कोर्ट में थे, तो वो बता रहे थे कि 10 to 15% आरटीओ होता है. हमारा 5% तक ही जाता है. That's very good. Very good. That's great. 7% हार्डली टच करते हैं. Very nice. शार्क टैंक के बाद थोड़ा बड़ा था आरटीओ, क्योंकि एकदम इन्फ्लक्स आ जाता है ऑर्डर का,
तो उसमें से कुछ लोगों ने ऐसे भी ऑर्डर कर दिया होगा कि हाँ ठीक है, दिख गया और तुरंत कर दिया। तो शार्क टैंक में हमारा हुआ 8-9-10% तक टच हुआ, लेकिन ऐसे ऑन एन एवरेज देखा था तो 5-6% के ऊपर आगे नहीं जाता। Correct. But after Shark Tank, did you guys get the chance of putting your brand on the quick commerce? हाँ हाँ, हमारा Zepto में हो गया ऑलमोस्ट, एंड हम इंस्टामार्ट में भी क्लोजिंग में है, करेंगे। That is very important I feel, क्योंकि जो 5-10 मिनट डिलीवरी जो वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एंड जिस स्केल पे वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, why would you want to put yourself into normal retail stores and hold your inventory? Rather give it to Instamart in just one place and they are delivering it everywhere. Yes, and उनके मतलब warehouses already बने हुए बने हुए हैं, बहुत अच्छा सिस्टम मेजर सिटीज बना हुआ है, और उनके प्लेटफॉर्म पे ऐड करनी है जो आप मेटा पे अगर कर रहे हो, सेम थोड़ा बजट वहाँ डाल दो तो आपका प्रोडक्ट थोड़ा फर्स्ट पेज पे दिखेगा या रिकमेंडेशन में दिखेगा, एंड यू हैव अ मोर चांसेस ऑफ बाइंग वहाँ से कस्टमर बिहेवियर, क्योंकि उनको इमीडिएट मिल रहा है, 10 मिनट में मिल रहा है, और फिर एक रिकॉल वैल्यू आ जाती है कि ये तो मैंने देखा था टीवी पे, सही बात, या इसका ऐड आया था 2 दिन पहले, जो भी, सही बात। सो दैट हेल्प्स। और थोड़ा वैलिडेशन भी ज़्यादा मिल जाता है व्हेन इट इज़ नॉट फ्रॉम योर ओन वेबसाइट एंड व्हेन इट इज़ फ्रॉम अ मार्केट प्लेस। Yes. एक वैलिडेशन पॉइंट में भी बहुत फ़र्क आता है। आज जैसे आप कोई भी एक क्लोथिंग ब्रांड हो, वो अपने वेबसाइट से उतना मतलब कोई एक नया वेबसाइट से एक कस्टमर शायद नहीं ऑर्डर करे, बट वही ब्रांड अगर मिंत्रा पे अवेलेबल है तो मिंत्रा पे लोग खरीद लेंगे। Yes. सिमिलरली आप एक रैंडम एक एग्जैक्टली आप एक रैंडम रेस्टोरेंट या कोई चीज़ देखते हो, आप मे बी वहाँ पे कॉल करके आप फूड ऑर्डर नहीं करोगे, बट वो चीज़ अगर स्विगी पे लिस्टेड है, वहाँ पे रिव्यूज़ अगर आप सब सही देख रहे हो, आप वहाँ से ऑर्डर कर लोगे इवन इफ यू हैव नॉट हर्ड द नेम बिफोर। वैलिडेशन में बहुत फ़र्क पड़ता है। ये भी है कि नया ब्रांड है और बहुत ब्रांड आते जाते रहते हैं। Correct. दूसरा चीज़ ये है कि उसमें जैसे आप अगर वेबसाइट पे ऑर्डर करते हो तो उसमें 5-7 डेज पहुंचने में लग रहा है, कस्टमर वहाँ भी है, और सबसे बड़ी चीज़ people order COD most. Yeah, because people think कि वो order आएगा ही नहीं. There are so आएगा many scam websites. There are okay. There is this data that I had read before starting XD. There are above 50,000 fake websites in India on a single day. Like आज के दिन में there are 50,000 fake websites in India. जो लोग live है, fake website जो लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, 50,000. तो अपने को अपने वेबसाइट्स को उन 50,000 वेबसाइट से हर दिन अलग करना है. कैसे दिखाना? That is the main game. There are 50,000 fake websites every day that are running, scamming, active. What are they doing? They only know, but like it's a bad scene. So that is the biggest challenge where people want to spend, like want to order COD. There are fake websites, but not this number. 50,000 every day. My Every day. All over India. Not just in Mumbai or not just in one हाँ, region, but, all over India. मार्केट प्लेस का आपने बोला ना, तो यही फिर वो फायदा मिलता है। जैसे अमेजोन पे भी है अमेजोन चॉइस का बैच, तो वो एक वैलिडेशन देता है। Right. अभी नाउ आफ्टर शार्क टैंक थोड़ा हमारा सेल्स भी बढ़ गया, उसके बाद हमारा रिव्यूज भी ज़्यादा आ गया, कांस्टेंट हमारे सर्चेस हो रहे, तो वहाँ पे भी टॉप ब्रांड में नाम आ गया। तो व्हेन यू ओपन रॉका का पेज तो नीचे लिख के आता है टॉप ब्रांड, 90% पीपल टॉकिंग पॉजिटिव, रिसेंट 1000 ऑर्डर्स फ्रॉम दिस ब्रांड, तो वो एक वैलिडेशन देता है। Right. और ये आप हर ब्रांड के जो टॉप ब्रांड है वहाँ देखोगे, वहाँ लिखा रहता है रिसेंटली 10 के ऑर्डर्स प्लेस्ड फ्रॉम दिस ब्रांड। Yes. तो दिस इज अमेजोन का वो वैलिडेशन आ गया। और अमेजोन पे मोस्टली लोग प्रीपेड करते हैं क्योंकि इट्स अ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, Yes. कि हाँ यहाँ से तो पैसा रिफंड ही आ जाएगा अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो, और नहीं भी आया तो Amazon है, Amazon। हाँ, मतलब Amazon कहीं गायब नहीं हो जाएगा, गायब नंबर गायब नहीं हो जाएंगे Exactly. Amazon के कस्टमर केयर के। सो वो एक फायदा है कि वहाँ पर हमारा जो COD में पैसा एक्स्ट्रा जा रहा था वो वहाँ पे हो गया। दूसरा चीज़ है दे हैव एक्टिव कस्टमर बेस। Amazon has in only in India 60 crore active users। Okay. हम 6 करोड़ भी वेबसाइट पे ला लेना, हमारा पूरा पैसा बैंक खत्म। उतना एक्टिव यूजर आ ही नहीं सकता हमारा। हम 10,000 की पर डे भी ऐड करें तो हार्डली 15-17 हज़ार वेबसाइट पे फुटफॉल्स आते हैं। सही बात है। उसमें से भी कन्वर्जन हार्डली कुछ होता है, उसमें से भी फिर COD बहुत सारे निकल जाते हैं, Correct. उसमें से भी और माइनस करो RTO तो RTO होंगे, और फिर हमारा कैप तो अलग लग गया, प्रोडक्ट का खर्चा, ये सब मिला के वी आर इन नेगेटिव या हार्डली कुछ पैसा बन रहा है तो बन रहा है। अमेजोन पे दे हैव एक्टिव यूजर बेस और वो इंटेंट के साथ आ रहा है। चॉकलेट का कस्टमर चॉकलेट के इंटेंट के साथ आ रहा है, हमारा ऐड रैंडम लोगों को दिख रहा है, तो उनका हम बिहेवियर टैप कर रहे हैं ना। बिहेवियर क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवलर, तो वो लाखों लोग हैं इंडिया में, उन सबको ऐड दिख रहा है। अब वो जरूरी नहीं है उसको चॉकलेट उस समय खरीदना, लेकिन अमेजोन पे आ रहा है वो बाइंग इंटेंट के साथ आ रहा है, उसका इंटेंट है कि मुझे कुछ खरीदना है, दैट्स व्हाई ही इज ऑन अमेजोन। और एटलीस्ट उसको कहीं कोई चीज़ आके खरीदनी, उसके बारे में रिसर्च करना, रिसर्च कर रहे हैं। सही बात। तो वो इंटेंट है, और वहाँ पर फिर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू आवर ब्यूटीफुल लुकिंग कैटलॉग, और फिर एक कन्विक्शन बिल्ड करेगा अमेजोन चॉइस प्लस वो 2-4 टैग्स जो आ गए, सही फिर बात। कस्टमर रिव्यूज, वहाँ से कन्विक्शन बिल्ड होगा, फिर शार्क टैंक थोड़ा चेरी ऑन द केक एज अ वर्क करेगा, Yes, of तो course. थोड़े हायर चांसेस है वहाँ से कन्वर्ट हो जाए।
बट आप लोग शार्क टैंक का कंटेंट को तो काफी आप लोग हाँ। बुलिशली यूज़ करते ही होंगे बिकॉज बहुत वैलिडेशन वही उससे चल रहा है, मिलता है एंड मोर देन एनीथिंग एक ब्रांड अगर शार्क टैंक पे आ जाए ना तो ही काफ़ी वैलिडेशन मिल जाता Exactly, है हाँ। उसमें भी आप लोग को तो रितेश ने फंड भी किया था राइट लाइक ही इन्वेस्टेड इन यू गाइज ऑल्सो तो उसके बाद तो लाइक वैलिडेशन वाइज तो आप लोग का एक हाँ अच्छा बैरियर ब्रेक हो गया है वैलिडेशन तो अभी है, अभी वो लोग रिकॉग्नाइज ब्रांड करते बिल्डिंग हैं, एक्सरसाइज काफी अच्छा काफ़ी अच्छा हुआ। अभी सामने से कॉल आता है, दे डोंट नेगोशिएट। ओह पहले तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उनको मनाने में ही परेशान हो जाते थे हम लोग, अभी तो डायरेक्ट सामने से ऑफर लेके आ जाते हैं। वाह मैंने अपनी मॉम को डे बिफोर येस्टरडे बोला कि डे आफ्टर टुमारो इज माय पॉडकास्ट विद द फाउंडर्स ऑफ रॉका एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग टू हर व्हाट इज रॉका एंड लाइक ओ या द चॉकलेट ब्रांड राइट ओके वाओ दैट्स नाइस So that has happened with a few of my friends. जब अपने घर ले गए हैं रॉका एंड दे आर लाइक कि ओ ये ब्रांड तो शार्क टैंक पे भी था, दे आर लाइक मम्मी दिस इज द गर्ल, द सेम गर्ल आई लिव विद and so it really feels good, yeah. I Yeah. mean, I still remember the day we filled our form for Shark Tank. We had absolutely no idea what we're doing, but I had no idea if there was some form rolled out and Yash is filling it on my name. So I was surprised when I got mail pe ki theek hai, you're qualified for round 2 and I'm like what the hell is round 2? When was round 1? And then I called him and I was like, I was dancing that we've made to round 2 and then there was another 25-page ka form that we filled out with a video and at that point of time we were like we actually lived in a PG. So Okay. like he's living with 11 other boys and I'm living with 7 other girls, but then yeah, that's the I would say that's Bombay, but still so I was like we wanted a place where we can shoot a nice video that could go. Correct. So and plus the guy that I'm talking about, he is Manas Madhu from Okay. Kerala Banana Chips. He Okay. was on season 1 right and right Kerala banana chips so yeah, he isn't taking something or anything. I mean, he is not certifiably our mentor, but then yeah, we run to him whenever we are in मतलब trouble officially because हमारा हाँ, mentor so कहीं he is mention in. नहीं है, लेकिन माना But- कुछ भी प्रॉब्लम है, माना से ये प्रॉब्लम है। So He's that was the always time, there, yeah. like, he always has your I back was in वैसे. touch with Manas that okay, we've And- made to and one round more, 2. Manu from Gladful, Manu season 2 from में आए थे। Okay. Gladful. Gladful जो Yeah. brand आया था। So every time I run to Manas, ki theek hai, we've got this, we've got the call for like round 2. What we do? Okay, Sonal, you have to make a very nice video, a very creative one. Just all the guys they need is the TRP. To get on TV, you have to give them TRP. For giving them TRP, you have to look like these are the people that will come बहुत creatively. So that is how we started. हमारा एक वीडियो देना था in round 2, so we made the video. और फिर लास्ट में it was some quirk of Yash that he said कि oh investable business देख रहे हो something आ जाओ बॉस दिला दिखा दूंगा and देते something like वो एक that. So trend उस- ट्रेंड चल रहा था राइट हाँ, राइट मतलब बहुत पुरानी बात है। जैसे हमने मैंने फॉर्म फिल किया था मई में लास्ट ईयर। सो मई में तो मेरे माइंड में ऐसा चलता था कि वुमन एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा मिलता होगा, लेकिन जब शार्क टैंक में जब एक्चुअल में हम लोगों से मिले, इंटरनल टीम से मिले, तो उन्होंने बोला कि भले आपके माइंड में कुछ भी होगा, लेकिन हम ये चीज़ें देखते हैं कि ये मेन एंटरप्रेन्योर है, वुमेन। नंबर्स देखते हम देखते हैं कि हम उस Vision mostly and ये numbers. हाँ ये प्रोडक्ट दिखाने लायक है नहीं है, और दूसरी चीज़ ये फाउंडर्स की स्टोरी या ओवरऑल ये ब्रांड शेयर करने हाँ. लायक है नहीं, क्योंकि इन दी एंड उन्होंने क्लियरली मुझे बोला था इन दी एंड शार्क्स को क्या मिल रहा है शार्क टैंक पे आने से, दे आर बिकम सेलिब्रिटी, पर्सनल ब्रांड पर्सनल ब्रांडिंग। हम 5 साल पहले नहीं जानते थे इन सारे शार्क्स को, रितेश को तो जानते थे, ही वाज वेरी पॉपुलर, लेकिन हाँ इन सब के फेसेस हम बहुत कम जानते थे, मोस्टली थ्रू लिंक्डइन हम लोग जानते होंगे, लेकिन नॉर्मल पब्लिक नहीं जानती थी कि ये इतने बड़े ब्रांड्स के पीछे फेस कौन है। लेकिन आज उनका कन्विक्शन देख लो, उनका ब्रांड वैल्यू, उनका फेस वैल्यू कितना ज्यादा है, और उसके वजह से उनका ब्रांड कितना ज्यादा बेटर कितना ज्यादा चल रहा है। हाँ. तो शार्क्स का ये फायदा हुआ, कंटेस्टेंट का क्या फायदा है? हमारा ब्रांड रातों रात टीवी पे आ रहा है और रातों रात करोड़ लोग देख पा रहे हैं ऑन यूट्यूब, इट्स ऑन टीवी, तो हमारे लिए भी है फायदा। इंडियन मेरा फायदा क्या हुआ? मेरा मतलब वो पर्सन बोल रहा है, मी एज अ सोनी टीवी क्या फायदा हुआ? मुझे तो मेरा फायदा देखना ना, मुझे चाहिए कि मेरे पास व्यूअर्स आए जिससे मुझे शो को वैलिडेशन मिले, जिससे एड्स आए, और एड्स के रेवेन्यू से मैं कमाऊँ। तो सीजन 1-2 शो अच्छा चला, क्यों चला? क्योंकि हमने ऐसे ब्रांड सेलेक्ट किए जिनकी स्टोरी जो थी वो हम शेयर कर सकते थे, तो वो वैसी स्टोरी हम मोस्टली ढूंढते हैं। उसके अलावा हम ढूंढते हैं कि ये ब्रांड एक्चुअल में दिखाने लायक है नहीं है, मतलब ये इन्वेस्टेबल है या नहीं। नहीं तो ऐसे तो हजारों एप्लीकेशन आते हैं, Yeah, नॉन इन्वेस्टेबल ब्रांड्स भी होते हैं, तो इन्वेस्टेबल है नहीं।
तो इससे हमारा फायदा होता है कि कस्टमर का मतलब जो एंड यूजर्स है, जो व्यूअर्स है, उनका एंगेजमेंट बढ़ता है कि दे कैन कनेक्ट विद द ग्राउंड रियलिटी, कि हाँ ऐसे लोग भी हैं जो ब्रांड बना रहे हैं, जो टीवी पे आ रहे हैं, और इंडियन ये रियल है, कुछ गिमिक तो है नहीं, बिल्कुल, क्योंकि of वो course. ब्रांड जो है वो एक्चुअल रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, आप उनसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो वहाँ से हमारा टीआरपी बिल्ड होता है और लोगों का भरोसा आता है कि हाँ नहीं ये ऐसी ऐसी स्टोरीज देखने मिल रही है। तो सीजन 1-2 से हमको ये पता चला, तो इसलिए मतलब 1 से मोस्टली पता चला, तो 2 से हमारा फोकस ये हो गया। तो हम ये चीज़ देखते ही नहीं कि आप कौन सा एक सस्टेनेबल कर रहे हो या ये कर रहे हो वो कर रहे हो। हमको सिर्फ टीआरपी से मतलब टीआरपी इन्वेस्टेबल प्लस इन्वेस्टेबल अच्छे बिजनेस चाहिए, अच्छी स्टोरीज, अच्छे फाउंडर्स चाहिए, दैट्स इट। और तीनों का सक्सेस होना चाहिए, ऑफ कोर्स, एज अ शार्क, एज अ चैनल, और बिल्कुल। इंडियन अनेबलर तो वही है, उनकी वजह से हम लोग हैं। सही बात है, बट आई तो फील यार शार्क टैंक जो प्लेटफॉर्म दे रहा है मार्केटिंग के लिए, Absolutely. इनक्रेडिबल। मतलब It is. एक ब्रांड जिसने 4 साल बैठ के भी अगर उतना रीच नहीं मिला रहेगा ना उसको, एक दिन नहीं, those 20 minutes can give you that reach what probably 4-5 years didn't give you. And if those 20 minutes what the founder is saying, if that is on point, it has changed the brand's outlook only then. Yes. आपका लाइफ हैज चेंज आफ्टर दोस 20 मिनट्स, Yes. बिकॉज अब वो ब्रांड के साथ कितने लोग, स्निच के साथ भी ऐसा ही हुआ। स्निच जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इट वाज ऑलरेडी डूइंग ग्रेट इट वाज डूइंग, लाइक 100 क्रॉस का एनुअल रन रेट पे था वो, लाइक ग्रेट से भी बेटर ही वाज डूइंग, बूटस्ट्रैप्ड एंड ऑल। एज सून एज द शार्क्स इन्वेस्टेड, Snitch became a thing now. Snitch is a thing. They have stores everywhere. The run rate they are at right now is probably above 300 CR also. The number of categories they have with them right now, like बहुत difference आ जाता है। सच में। नहीं, दिस इज अ रियली गुड प्लेटफॉर्म, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, जो भी होगा इनके पीछे का माइंड रियली गुड। Of course. And again, personal branding is also a trend right now. Yes. All businesses are going successful because there is personal branding involved, or the owner or the founder himself is trying to become a personal brand and then diverting into the business. Correct? Yes. These guys also did that, but on a larger scale, Very large. because they had those resources also, of course, but they did it on a very large scale. Personal branding का तो वो लोग ने पूरा, मतलब रितेश अग्रवाल का मैंने 3rd season का first episode देखा था of Shark Tank. रितेश अग्रवाल का मैं प्रोफाइल पे गया हूँ, he had approximately 4,000 followers on Instagram. आज देख लो, आज मिलियन एक सीजन में ऐसा चेंज कर दिया उसने उसको ऑफ कोर्स बहुत ब्यूटीफुली यूटिलाइज भी किया। हाँ। उसने बहुत ब्यूटीफुली उतना कंटेंट थ्रो भी किया, लाइक यू सी रितेश's profile, there are 5 posts a day with founders, with people, like Yes, God yes. knows how many people is he meeting a day, but there is so much content that he's also pushing, and people also want to see Ritesh after all. Of course, why not? Because he's built something so good, he is so good as a person also. Yes. So like people want to see him. क्या रीच मिल गई रितेश को, सच क्या में। पर्सनल ब्रांडिंग मिल गई। हमारा जो शार्क टैंक का एपिसोड है उसमें आप YouTube पे कमेंट्स देखेंगे ना, तो मोर देन ब्रांड एंड फाउंडर पीपल आर प्रेजिंग रितेश। हाँ सही में, सच अ स्वीट पर्सन, सच्ची में रितेश को देख के लगता है यार ही इज एक्चुअली वेरी 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 स्वीट। ग्राउंडेड पर्सन, स्वीट पर्सन, और उनको पता है So कि with success, if हाँ, gratitude comes, is where you can make a brand. yes, But then, ह्यूमिलिटी जो है, मतलब इतना बड़ा स्केल पे बिजनेस चला रहे हैं, और वो ह्यूमिलिटी होना इट्स वेरी बिग, वेरी रेयर थिंग। या वेरी रेयर और वो थिंग। रितेश को देख के लगता है कि नहीं ये इंसान है, सही, बहुत अमेजिंग था। क्योंकि उसके बाद जो हमारा टैंक में जो शूट हुआ, उसके बाद रितेश से हम अलग से मिले भी थे एक बार, मतलब आफ्टर दैट इमीडिएटली 1-2 घंटे बाद, तब भी वो जो जिस वे से हमसे बात कर रहे थे, जैसे ग्रीट कर रहे थे, तो इट वाज रियली अमेजिंग। ऑफ कोर्स वो पॉजिटिविटी भी हाँ, आ जाती है ना positivity। बहुत ज्यादा। यार अभी इसको बढ़ाएंगे, इसको 1000 करोड़ का ब्रांड बनाएंगे, आप देखो धीरे धीरे करेंगे, सब करेंगे। Very और ही इज कनेक्टेड विद आवर स्टोरी ऐसे, जो हमारा जो इनिशियल स्ट्रगल, फेयर शेयर ऑफ स्ट्रगल था, सबका ही था, Of course। हमारा कुछ ऐसे ओवर द टॉप नहीं था, लेकिन हाँ रितेश ने वो चीज़ कनेक्ट किया कि हाँ समवॉट आपकी स्टोरी मेरी स्टोरी जैसी है, कि कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, शी इज फ्रॉम नागपुर, आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन 150 किलोमीटर्स फ्रॉम नागपुर, तो रितेश भी रायगढ़ से है, जो भी स्मॉल टाउन है, डिस्ट्रिक्ट ही है, तो वो कनेक्ट किया। फिर रातों रात नई सिटी, जैसे वो दिल्ली चले गए, हम मुंबई आ गए, और फिर वो स्टेशन पे रहे, हम फुटपाथ पे भी रुके थे, वो हमने शेयर नहीं किया कहीं भी, लेकिन वो सब हमारी स्टोरी का पार्ट है। तो फिर यहाँ रहना, जैसे किसी हॉस्टल वगैरह में रहना वगैरह, तो वो सब रितेश, स्ट्रगल हाँ, तो वो रितेश ने कनेक्ट किया, और रितेश बोला कि मोर देन दिस, इसके थ्रू ये चीज़ पता चलता है, मेरी स्टोरी बहुत से लोगों को यकीन नहीं आती है, क्योंकि ओयो कभी स्टार्टिंग फेज में फाउंडर की स्टोरी किसी ने देखी नहीं, उन्होंने बस एज अ ब्रांड ओयो देखा, और फिर ओयो बड़ा हो गया वहाँ, तो उसके पीछे का चेहरा फिर बाद में आया कि यंगेस्ट वगैरह बिलियनियर वगैरह आ गया था, फिर वो 20-22 साल के होंगे शायद, या 22-23 साल के थे,
तो तब तक ऐसा लगा कि ऑलरेडी प्रिविलेज लड़का, लेकिन शार्क टैंक के थ्रू ये चीज़ अब बहुत अच्छे से हाईलाइट हो सकती है कि सच में जो मैंने जो किया है वो स्टोरी तो अभी बाहर नहीं आ सकती या लोग उतना बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मेरे जैसे और लोग हैं Yes. तो सेम वैसे इससे आपके ब्रांड बना के शार्क टैंक पे आ सकते हैं, डील ले सकते हैं, और नहीं भी डील ले तो एटलीस्ट कुछ खुद का कुछ कर सकते हैं। सही बात। तो मुझे ये स्टोरी ज़्यादा प्रमोट करनी है Yes. कि ऐसे It is possible. It is possible. Everything and anything आज के टाइम पे तो possible and like we have access to such easy platforms also अभी. Yes. You have Shopify. Like anybody can make their website like this right now. घंटा लेके बैठो आपको Shopify ऊपर से नीचे तक समझ में आ जाएगा। है ना? तो अब आप मतलब आपके पास एक राइट प्रोडक्ट है या एक राइट विजन है, you can build your website, you can build your delivery partner with Shiprocket or whoever like you want to, and you can start your business like this. Enablers है बहुत सारे। बहुत enablers है एग्जैक्टली आपको खाली क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। आप कोई भी कोने में बैठे हो, इट इज़ पॉसिबल। मे बी टू स्केल यू माइट हैव टू मूव आउट ऑफ दैट प्लेस, मे बी, बट चालू तो आप कर ही सकते हो। चालू आपको मतलब कोई भी अगर आप कोई कोने में भी बैठे हो, आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है ओ आई नीड टू मूव टू मुंबई और बैंगलोर और पुणे टू स्टार्ट माई जर्नी। नो, द जर्नी कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम any corner in India, not in the world, in India. But after that, if you want to scale, yes, probably you might have to move out. बस माइंडसेट का फर्क है। Mindset. माइंडसेट होना चाहिए आपका वैसा। और दूसरा चीज़ है कि हमको हमारे कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। जैसे घर में मेरा कंफर्ट जोन होता है, मैं उतना नहीं बोलूँगा होता है, लेकिन हाँ होता है, क्योंकि मम्मी, अब मैं मम्मी को बोलूँगा मम्मी भूख लगी, मम्मी खाना दे देगी। यहाँ कोई मम्मी नहीं है मेरे पास। मम्मी मेरे पास फ़ोन पे दिन में आधा घंटा बात करो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मम्मी तू यहाँ क्यों नहीं? तो वो चीज़ होती है कि हाँ मैं अपने कंफर्ट जोन में हुई नहीं, मुझे खाना चाहिए तो मुझे खुद चाहिए, लाना पड़ेगा। कैसे करूँ? आज बनाऊँ या आज मैं कहीं से ऑर्डर करूँ या आज का दिन खाता ही नहीं हूँ। ऐसे कुछ 3-4 ऑप्शन है, मम्मी वाला ऑप्शन तो नहीं है। तो हाँ, कंफर्ट जोन के जब बाहर आते हो ना, तब तुमको सच में रियलाइज हो जाता है कि नहीं यार हम कुछ करने आए कुछ ग्रेटर गुड के लिए आए हैं। Yes, और हम करके ही जाएंगे। एटलीस्ट हम सक्सेस ना हो, लेकिन इन दी एंड ये रिग्रेट ना रहे कि यार मैंने हाथ पैर भी नहीं मारा। हाँ, सही बात है। एटलीस्ट मैं उतना ट्राई कर लेता तो आज मेरे पास धंधा होता या मेरे पास कुछ बिजनेस होता। सही बात। अगर आपने पूरे हाथ पैर मार लिए, हो सकता है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हो, आपका प्रोडक्ट नहीं चला या कस्टमर के साथ कनेक्ट नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हो और नहीं सक्सीड हुआ, तो वो गम तो रहेगा कि हाँ यार हो जाता सक्सीड, लेकिन एटलीस्ट एक रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने मेहनत ही नहीं की। बट यार उस वे में आई तो फील यू लर्न अ लॉट। मैंने अपने इसके हर पहले के एपिसोड में ये चीज़ तो बोली है, मैं वापस इसमें बोलता हूँ। बिफोर XD आई हैड अ फेल्ड स्टार्टअप, आई वॉज इन द NFT स्पेस, Web3 स्पेस, ठीक है, एंड यू नो हाउ द Web3 स्पेस डूम्ड, and when it was dooming, my project was coming in while it was dooming. In the downfall of Web3, my project was coming in. So timing wasn't right, our execution also wasn't right, I didn't have the right team like I do right now, like वो सारी factors थे, but वो पूरे journey में that NFT प्रोडक्ट के जर्नी में मैंने इतना सब कुछ सीख लिया कि मेरे को गम ही नहीं है वो प्रोजेक्ट नहीं चलने का। लाइक आई डोंट हैव अ सिंगल रिग्रेट कि वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं चला। अरे ठीक है नहीं चला तो नहीं चला, उससे इतना सब कुछ सीख के आज अपने चला ही रहे ना कुछ। तो लाइक इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। ये भी चीज़ है, जैसे अगर लेट्स से भगवान ना करे ऐसा, लेकिन नहीं चलता है मेरा ब्रांड, हमारा ब्रांड अभी रॉका नहीं चलता है, तो हम हमारे पास एटलीस्ट ये 2-3 साल का 4 साल का जो एक्सपीरियंस है, वी कैन पुट इट टू अ VC फर्म और हम जाके बोल सकते हैं यू कैन हायर अस, वी कैन हेल्प यू इवैल्यूएट D2C ब्रांड फॉर गुड डील्स। Yes. इजीली वी कैन गेट हायर्ड बाय अ गुड VC फर्म, कोई सेक्वायर कैपिटल या PKX जो भी हो चुके हैं वो सब, वो हमको हायर कर सकते हैं कि ठीक है हमारी D2C की डील आप इवैल्यूएट करो। तो वी हैव ग्राउंड रियलिटी कि D2C ब्रांड कैसे वर्क करता है। भले हमारा सक्सेस नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट वी हैव द एक्सपीरियंस, और फिर वहाँ से कुछ हम अर्न करके फिर से हमारा ब्रांड चालू कर सकते हैं। सब कुछ वो गलती ना करते हैं Yes, कैसे। exactly, and that is the best thing to do. That is the I best feel कि आप अगर आप वो गम लेके बैठ गए कि ये चीज़ नहीं चला, तब आप वो गम लेके बैठ रही हो, और यही अगर आप वहाँ से सीख लो कि क्यों नहीं चला और वापस ट्राई करो with those learnings, with those changes, तब चलेगा ही ना। This thing I've told सोनल हमेशा, कि सोनल भी बोलती थी कि ये चीज़ हम दोनों के माइंड में होता है, नॉट ओनली सोनल, मैं तो खुद को बोलूँ कि यार नहीं चल रहा है, ये तो सेल नहीं हो रहा, कैसे करे यार, ये मशीन खराब हो गई, वो आंटी का ये हो गया। ऐसे हमारी बहुत डिप्रेसिंग स्टोरी में बताने जाऊँगा तो हम परेशान हो जाएंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमको फैक्ट्रीज में आती थी, तो मैं यही बोलता था कि सोनल आज भी अगर आपके साथ तो हुआ है वो चीज़, आज भी अगर मेरी फैक्ट्री पूरी जल के खाक भी हो जाती है, मेरे वर्ड्स थे कि जल के खाक भी हो जाती है, तो मैं उस रात भर बैठ के रहूँगा कि यार कैसे हो गया है, भगवान ने क्यों ऐसा किया, जिसने भी जो भी हो। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग आऊँगा, अब वो हो गया, अब मैं आगे क्या करूँ। अब जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है, अब मैं रोते वो वेस्ट करके तो मतलब एक नहीं भी है। रोना यूज दोस एक्सपीरियंस हाँ। लाइक फॉर योर ओन गुड एंड मेक समथिंग बेटर
हाँ than what you already had. लेकिन ये बोलना बहुत आसान है, जब हम सच में एक्सपीरियंस करते हैं बहुत बुरा लगता है। सच्ची बात है, of course, of course. तो रोना जायज़ है, लेकिन वो रोते ही बैठना गलत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि बोलना इजी है सच्ची में। आज मेरे लिए बोलना इजी है। जब मेरा भी NFT प्रोजेक्ट बंद हो रहा था, लकीली आई वाजंट आंसरेबल टू इन्वेस्टर्स, luckily, but I was still answerable. You raised? No, I did not raise during my NFT project. It was again bootstrapped only, but I did not raise, luckily. ठीक है, anyway, तो मेरे को वो उतना भी नेगेटिव अपने नाम पे नहीं चाहिए था कि एक बार इन्वेस्टर का पैसा डुबा चुका है, मेरे को वो नहीं चाहिए था। आई वाज आल्सो लिटिल अनश्योर अबाउट द होल NFT स्पेस व्हाइल इट वाज डूमिंग, कि क्या हो रहा है मेरे को भी नहीं समझ रहा था उस टाइम। तो मैं बोला कि नहीं, तो फिर इन्वेस्टर वो सब में रशियन नहीं करता, अभी रुक जाता है, अपने देखते हैं क्या हो रहा है। देखते देखते तो बंद ही हो गया। एनीवे, आज बोलना ईजी है, उस टाइम तो आई वॉज ऑल्सो आंसरेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल। आई वॉज ऑल्सो क्वेश्चनिंग सो मेनी थिंग्स कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं डैड का धंधा ज्वाइन कर लेता हूँ। लाइक ये बहुत सारे थॉट्स थे उस टाइम कि आई डोंट थिंक सो, टीवी पे देख देख के अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं वो चीज़ क्रैक कर पाऊँगा। ऐसे मल्टीपल थॉट्स आ गए थे उस टाइम तो, लाइक आप समझ रहे हो। एंड आफ्टर वन प्रोजेक्ट फेलिंग, हाउ डू यू इवन गो एंड से कि नो दिस फेल्ड, नो ओके आई वांट टू स्टार्ट दिस, हाउ डू यू डू दैट? स्विच नहीं है हमारे पास इतना हाँ ईजी नहीं होता है ना। और वही, और इवन चलो इवन योर डैड जिससे आपने फर्स्ट टाइम पैसा लिया वो करने के लिए एंड इट फेल्ड, हाउ डू यू गो एंड टेल हिम कि पापा वो तो चलो पैसा डूब गया, अब मेरे को ये चालू करना है, इसके लिए पैसा दे दो। यू कैन नॉट डू दैट, like you cannot do that. So that time was a difficult journey for me also, definitely, but if you come out of it, then the come out rest, strong. yeah, the rest is much better. करेक्ट। Yes. So of course, but यार guys, मेरे को एक चीज़ बताओ, कैडबरी के मार्केट में होते होते कैसे रोका? लाइक क्या सोचा कि नहीं भाई रोका टक्कर देगा कैडबरी को? नॉट जस्ट कैडबरी, देयर आर अ लॉट ऑफ जायंट्स ओवर There are देयर। a lot of giants. जैसे आपने बोला ना शुरुआत में कि हजारों कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन इन द एंड वही करता है जो एक राइट Correct. वे ऑफ माइंडसेट प्लस ब्रांड परसेप्शन बिल्ड करता है, प्लस एक स्ट्रेटेजी के साथ जाता है। उस सेम थिंग के साथ हम गए। कैडबरी तो जायंट है, बहुत बड़ा जायंट है, हम सोच भी नहीं सकते कि कैडबरी को हम कैसे टक्कर दें। हमारे माइंड में है ही नहीं कैडबरी को टक्कर देना। कैडबरी रातों रात हमारे जैसा प्रोडक्ट बना के नहीं बेच सकता, क्यों नहीं? तो हम अगर वो चीज़ पे सोचने गए तो शायद हम ये चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारा मेन चीज़ यही है कि कैडबरी तो कर रहा है अपने स्पेस पे, अच्छा कर रहा है, हम क्या अलग कर सकते हैं कि हम कैसे वैल्यू ऐड करें कस्टमर के माइंड में। तो कैडबरी तो दे रहा है 100 रुपये का प्रोडक्ट, कस्टमर के माइंड में बहुत ज़्यादा वैल्यू है प्रोडक्ट का। वो रातों रात कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करेगा ना तो वो करोड़ों का सेल्स कर लेगा, लेकिन हमको पूरा जीरो से बिल्ड करना है। इकोसिस्टम ही नहीं है कुछ भी हमारे पास, ना ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमने बस यही सोचा कि हम कुछ ऐसा चीज़ मार्केट में लाए जो इजीली अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़, इसका कहीं ना कहीं से वैल्यू डिराइव हो, बीट उसका इंग्रेडिएंट से या बीट उसका एक स्टेटस फैक्टर है। हमने सोचा क्यों नहीं सबको कंबाइन कर लें। तो हम चाहते थे कि फरेरो रोशर जैसे इंडिया में आया तो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना अच्छा ब्रांड बिल्ड कर दिया कि लोग उसको एक आइडियल समझते हैं फॉर गिफ्टिंग। सेलिब्रेशन में कैडबरी को गिने नहीं रहोगे, कैडबरी बहुत अलग लेवल पे है। तो सेलिब्रेशन अगर आप छोड़ दो वो भी है, लेकिन फरेरो रोशर का मोमेंट्स हो गया या उनका रेगुलर जो बॉक्सेस है वो लोग गिफ्ट करते हैं तो एक स्टेटस क्वेश्चन आता है कि हाँ यार फरेरो मिलान हो जाए, या हम भी खुद सोचते हैं कि मैं इसको फरेरो दे रहा हूँ। सही बात तो है, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी कभी इसको गिफ्ट देता हूँ, ये भी कहीं मुझे देती है तो मैं एकदम से प्राइस देखता हूँ, यार इतना महंगा क्यों लाया? बोले नहीं चीज़ भी अच्छी है, तो फिर हम दोनों साथ में मिलकर खाते हैं। तो वो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि फरेरो का टेस्ट भी बुरा नहीं है, मतलब प्रोडक्ट भी अच्छा ही है, और उसके अलावा लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी लेते हैं। हमने बोला क्यों ना ऐसे कुछ वैल्यूज पे हम हमारा प्रोडक्ट बिल्ड करें जिससे ऐसा समझ में आया कि ये सामने वाले को लगे कि एक स्टेटस क्वेश्चन भी आ रहा है, एक सेल्फ इंटेलिजेंस वाला फैक्टर भी आ रहा है कि हाँ यार बढ़िया टेस्टी चॉकलेट है, मुझे सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है। तो एक चीज़ हमने फिर सोची कि फील गुड विद रॉका हम चालू करते हैं। तो फील गुड मतलब आप रॉका खाओगे आपको फील गुड होगा, और आप किसी को गिफ्ट करोगे तब भी आपको फील गुड होगा, और सामने वाले को भी फील गुड होगा। और ये कैसे हो सकता है? कुछ नया मार्केट में लाने से। तो जब इनिशियल स्टेज में हम सोच रहे थे, जब हमने हैप्पी को चालू किया था नागपुर में, तब हमारी डार्क बेल्जियन चॉकलेट्स हमने लॉन्च किए थे विद द विजन कि हमको कुछ नया लाना है, लेकिन फॉर द स्टार्टर्स टू टेस्ट आवरसेल्फ आउट कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। To test the market also. If there is a market. if There it is is acceptance. हाँ, acceptance by the brand तो authority नहीं उससे होगा। हमको समझ में आया कि हाँ यार इसको तो बहुत अच्छी डिज़ाइन बनानी आती है, ये तो अच्छा बना देती है, और इसका डिज़ाइन लोगों को लग रहा है कि फॉरेन का है, जबकि वो बनाया हमारी कुछ 4 गलियाँ छोड़ के। तो ये सब चीज़ें हमको समझ में आई। फिर हमने सोचा कुछ तो नया जो हमने सोचा था वो करते हैं। डार्क बेल्जियन चॉकलेट तो लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो हमने नया क्या सोचा था, इनके रिश्तेदार वहाँ UK वगैरह गए होते थे वर्क इन अमेजोन, तो वहाँ से हमारे लिए इंग्लिश टॉफ़ी लाए थे। तो इंग्लिश टॉफ़ी वहाँ पे डोर टू डोर वाली चीज़ है ना, हाँ, लोकल बेकरी में बेकरीज वगैरह में बनती, जैसे
हमारे यहाँ तो नहीं बनती बेकरीज बट हमारे यहाँ जैसे एक्लेयर्स बिकता है वैसे नॉट दैट उतना डोर टू डोर हाँ एक्लेयर्स तो बहुत जैसे हमारे यहाँ पे केक रस्क होता है Okay. यहाँ वैसा, तो उनके यहाँ पे बेकरी में इंग्लिश टॉफी मिलती है। हाँ तो हमारे it's यहाँ a कैसे topping बोलेंगे made at- काजू कतली ज़्यादा हो चिक्की। गया, चिक्की Okay. चिक्की जैसे हमारे यहाँ पे Okay. घर पे भी बनती है Okay. और लोकल बेकरी में भी मिलती है। वैसा कुछ तो वो चीज़ वहाँ से लेके आए हमने खाई हमको अच्छी लगी हमने बोला इस पे कुछ करते हैं तो फिर हमने रिसर्च किया तो इसको इंग्लिश टॉफी प्लस ब्रिटल भी बोलते हैं कई जगह हमने बोला इसके जैसा प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं तो ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ लोग कर रहे थे तो ब्रांड भी थे बट दे वर नॉट डूइंग एक प्रॉपर ब्रांडिंग वाला चीज़ इससे रेगुलर ब्रांड लग रहा था तो हमने सोचा इसको थोड़ा लग्जरी वे में कैसे दिखाया तो फिर सोनल और मैंने इस पर रिसर्च चालू किया फिर मीनवाइल हमने यूएस का एक हमको टेस्ट करने का मौका मिला पीनट बटर का प्रीसेस का आता है तो हमने बोला यार ये तो इंडिया में कहीं नहीं दिख रहा जैसे इंग्लिश टॉफी नहीं दिख रही तो ये हमारे विजन के साथ थोड़ा बहुत मैच कर रहा है इंडिया में हम ये लॉन्च कर सकते हैं तो हमने फिर पीनट बटर कप्स प्लान किया उसका नाम हमने जूलू रखा था रॉका वाज अ इंग्लिश टॉफी जूलू वाज अ पीनट बटर कप और ऑल अंडर द नेम ऑफ हैप्पीको फूड्स ओके तो जूलू भी हमने लॉन्च किया था छोटे स्केल पे लॉन्च किया था पीनट बटर कप हमने बनाया था काफ़ी अच्छा वो भी चला था सो तब से हमने वो बिल्ड किया कि कैडबरी जो मार्केट में है वो तो है लेकिन हमको ये चीज़ उनसे अलग करेगी और दूसरी चीज़ ये है कि इन चीज़ का मार्केट में डिमांड भी हमने देखा है वो आ रहा है जैसे हमने रॉका लॉन्च किया लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं रिपीट कस्टमर थोड़े बहुत आ रहे हैं D2C का नॉलेज नहीं था तब टू बी वेरी ऑनेस्ट लेकिन हाँ रिटेल में भी आ रहे थे हमारी लोकल बेकरीज उसको बेच पा रही थी और हमको फिर से नया ऑर्डर दे रही थी क्योंकि उनको भी लग रहा था कि प्रोडक्ट बिक रहा है आप लोग को भी एक वैलिडेशन और हमको भी छोटा एश्योरेंस सा थोड़ा validation मिलता आ है रहा हाँ भाई चलेगा तो सही है बड़े स्केल पे चलेगा नहीं चलेगा ठीक है लेकिन हाँ अभी तो चलता है बड़े स्केल पे बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए रहेगा फिर जब हमको कॉम्प्लेक्सिटीज पता चली वो तो दूसरी कहानी है कि हमको B2B के लिए बहुत पैसा चाहिए कि टीम डालनी पड़ती है इनको ऑन ग्राउंड लेवल की टीम होती है वो हमको पता ही नहीं था जब वो वहाँ तक हम पहुँचे तब तक हम समझ गए कि ये हमारे अभी काम का चीज़ नहीं है अभी D2C करेंगे और जो सामने से ऑर्डर आ रहे वो करेंगे तो हाँ टू आंसर योर क्वेश्चन कि कैडबरी और इतने सारे जायंट्स होने के बावजूद भी देयर इज अ प्लेस फॉर अ न्यू ब्रांड एवरी न्यू ब्रांड ऑफ कोर्स देयर इज एंड एट एनी सेक्टर आप शार्क टैंक में देख लो कितने अच्छे हमारे पास हार्पिक और इतने सारे क्लीनर्स हैं कोपारो क्यों इतना अच्छा कर रहे हैं यार मैं तो डेफिनेटली मानता हूँ कि हर ब्रांड के होते होते भी एक नया ब्रांड को नया आना brand ही आ सकता है, चाहिए with- मैं तो with खाली the आप लोग का अंडरस्टैंडिंग समझना चाहता था कि व्हाट वाज योर थिंकिंग कि भाई क्योंकि लोग डर जाते हैं लोग डरते हैं। आज मैं हमें किसी को कुछ बोलूंगा कि करना ही था। हाँ। यश was someone जो जिसको जॉब नहीं करना था, I was someone जिसको जॉब ही करना था। So I was in my third year of a 5-year course और यश उस टाइम पे 4th year में था अपने 5-year course में। Then बस इसके बर्थडे के लिए I was searching कि मैं इसको क्या गिफ्ट दे सकती हूँ। I got like 100 रुपये का अमूल और सिल्क और दूसरी जगह नागपुर में 500-600 रुपए का लिंट और गिरार्डली और ये सारे इम्पोर्टेड ब्रांड्स थे प्लस फेरेरो रोशर। दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि यार कितना बड़ा गैप है, मतलब 200-150 से लेके 400-500 तक के के बीच में कुछ there's no one। और ऐसा एक ब्रांड जो क्वालिटी दे रहा है, टेस्ट दे रहा है, पैकेजिंग अच्छी है कि मैं उसे गिफ्ट कर सकती हूँ, दैट लुक्स गुड। प्रीमियम भी तो वाइब आ रहा है एग्जैक्टली और कुछ हाँ, नया तो भी। वैसा कुछ था नहीं। तो फिर आई गेस कि उस टाइम पे मैंने यश को सबसे बड़ा उसका बर्थडे गिफ्ट दिया था दिस आइडिया कि यार लेट्स जस्ट डू अ चॉकलेट ब्रांड फ्रॉम आवर होम। तो What मेरा better तो than a gift? एग्जैक्टली तो मेरा प्लान ये था कि ठीक है 2 साल करूंगी, अपना पॉकेट मनी निकालूंगी एंड देन आई विल डू अ जॉब, यश विल टेक केयर ऑफ दिस बिजनेस। बट देन आफ्टर 2 years जितना हम लोग the Involved more हो गए। exactly we were so involved, we've put in so much कि उस time पे to back off it was like it was me cheating him and so मुझे उस टाइम पे ऐसे ही फील हुआ एंड देन आई वाज लाइक कि नहीं ठीक है यही कर लेते हैं, देखेंगे जो हुआ हुआ। तो आई गेस उसके बाद ही वी टुक द लोन ना, हाँ। तो उसके बाद ही वी टुक द लोन, वी स्टार्टेड द फैक्ट्री। उसमें भी वी our first factory was of 500 square feet on a 3rd floor नहीं without lift. फर्स्ट वाज 2 BHK So फ्लैट that was a that was work. not factory नहीं Wasn't था a work. यानी Wasn't घर ही a घर में factory. बनाते थे हाँ, घर। तो खुद ही सुबह आप से लोग पहले लेके products हाँ बनाते सुबह से थे? लेके शाम तक के बेचने जाते थे, शाम को घर आते थे, फिर बनाते थे जो ऑर्डर आया है उसका, और कल वो बेचने जाएंगे, वही फ्लैट में ऑर्डर मैं आएगा रहता अपना। था। इट वाज अ 2 BHK, वहाँ पे 2 BHK बहुत सस्ता मिलता है नागपुर में, थोड़ा आउटसाइड ही था। तो हमको कितना 5,000 प्लस 1,000 रुपए उसका मेंटेनेंस, तो 6,000 में 2 BHK फ्लैट 300-400 स्क्वायर फीट का। तो उसमें एक हॉल और एक रूम में बनता था किचन में, और एक रूम में मैं रहता था। और सोनल का घर वहाँ से 2-3 किलोमीटर पे था, तो वो गाड़ी लेके आ जाती थी हाँ। और वहीं पे हम बनाते थे। और वहीं से वो 2 व्हीलर से हम लोग 2 व्हीलर से तो हमने पूरा नागपुर नाप लिया है, एक एक गली वेरी नाइस। बट आप लोग ने जब स्टार्टिंग में इतना खुद से जब ग्राउंड रियलिटी देख लिया
तब जाके स्केलिंग विल बी इजी ऑल्सो बिकॉज यू ऑल नो व्हाट द चैलेंजेस आर स्टार्टिंग का ओनली. इफ डायरेक्टली अगर आप ये सारा चीज़ अवॉइड करके आप डायरेक्टली स्केलिंग पे जाओगे तब आपको ये सारी चैलेंजेस बीच बीच में खाती रहेगी. इज व्हाट आई फील. तो ये चीज़ I हुआ still बिना remember there was a brand from Nagpur only. हाँ, हम नाम नहीं याद आ रहा है. एक कोई ब्रांड था जो नागपुर का ही था. वो द चॉकलेट स्पेस. चॉकलेट था. The chocolate space. वो कंपाउंड बेस्ड चॉकलेट बना रहे थे और 400 एमआरपी पे किसी एक स्टोर पे रखा हुआ था. और वो सोनल को देख के बोलती है यार ये क्या है, ये मैं नहीं कर सकती क्या. मतलब क्यों नहीं कर सकती. तो उसके बाद से हमने फिर बहुत अच्छे से रिगरसली उस पर सोचना चालू किया कि यार वो 400 में बेच रहा है, स्टोर वाला बोल रहा है कि हफ्ते में 1-2 बिक जाता है. बोला हफ्ते में 1-2 उसका 400 में बिक सकता है, 400-450 में. तो हम तो उसको अच्छे क्वालिटी में बना सकते हैं 200-250 में. हमारा शायद 5 बिक जाएगा हफ्ते में एक स्टोर से. वो सच नहीं होता है. बहुत से सारे कैलकुलेशन गलत होते हैं. शुरुआत So में. everything looks आप सब good कुछ and green ऑप्टिमिस्टिक on देखते paper. हो ना. हाँ आप सारे ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स देखते हो. आई रिमेंबर मैं ईशांक माय ब्रांड मैनेजर में उसको स्टार्टिंग में एक एकदम इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक विजन दिखाया था कि बस यार अपने को तो इतना बेचना, इतने लाखों मिल जाएंगे ऐसे वैसे. एंड व्हेन इट स्टार्टेड वी आर लाइक ओ ब्रो एक भी नहीं बिक रही अभी तो द फर्स्ट डे. लाइक हाउ विल इट हैपन. एंड भाई बहुत सारा कैलकुलेशन तो बोला भूल जाओ भाई वो कैलकुलेशन को. जीरो पे आ जाओ और अब नया कैलकुलेशन चालू करो कि एक को कैसे निकालना है. आप उस पर फोकस करो पहले, वो हो जाएगा अपने आप. बट सच्ची में कोई कैलकुलेशन काम नहीं आता बिकॉज आप ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक रहते हो. हाँ, हमको हमारा प्रोडक्ट बेस्ट लगता है. ऑफ कोर्स. हम तो ऐसे समझते हैं कि भाई ये तो बेस्ट है मार्केट का. क्या कौन से ब्रांड है, हमारा ही बेस्ट है. हाँ हाँ ये इनिशियली आता है और ये आना भी चाहिए कहीं ना कहीं. तभी वो एक कन्विक्शन बिल्ड होगा कि हाँ हम जाके मार्केट में इसको बेचते हैं. फिर मार्केट थोड़ी ठोकर देगा, फिर हम समझेंगे ये कमी है, देन विल हैव एक्सेप्टेंस. करेक्ट. तो फिर हम वो फ्लॉस को हम फुलफिल करने का ट्राई करेंगे. सही तो बात. उसी के थ्रू फिर सर्कल बिल्ड होगा, फिर नेक्स्ट सर्कल ओपन होगा, फिर वो हम कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट सर्कल. तो इन्फिनिटी नहीं है ये कि हम बस उसमें है, लेकिन हाँ नेवर एंडिंग ही है. नेवर It is a चलते never रहेगा. ending. Yes, yes. It is a never ending Never process ending only, process. 100%. Acha guys, don't mind. Sorry for shifting it from the podcast to sounding like a coffee with Karan show. But आप लोग दोनों बहुत एक दूसरे का तारीफ करते हो. Are you guys just co-founders or are you guys a thing also otherwise? मिस्ट्री है हर जगह, तो इसको मिस्ट्री रहने देंगे. ऐसा क्यों?